am teaching you voices. You know that voices are of two types, that is passive voice and active voice. What is a voice? Voice of a verb tells whether the subject of a sentence performs or receives the action. Active voice. The active voice, the subject performs the action expressed by the verb. Voice दो तरह की होती है, active voice और passive voice. Active voice वो होती है जो कि action कर रहा है, subject जो काम कर रहा है वो बताता है active voice. For example, he sings a song. Now here he is your subject, song is your object and sing is your verb. मतलब वह गाना गा रहा है, तो गाना गा रहा है, वो काम बता रहा है, that is your active voice. Passive voice. In passive voice, the subject receives the action expressed by the verb. Like a song is sung by him. Passive voice में वो होता है कि subject ने receive किया है कि उसने क्या काम किया है. Active verb. A verb is active when it performs, shows, sentence A, that the subject does some work or subject is active. Here in the A sentence, that is he sings a song. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि subject active है, वो गाना गा रहा है. Now in passive verb, a verb is passive when it forms, shows, sentence B, that sometimes is done to the subject of a sentence A, or subject is not active but passive. Now in the passive voice, the subject is not active but passive verb is active. General rules to change active voice to passive voice. Rule 1. Identify the subject, verb and object in the active sentence to convert the passive voice. Example, he drives car. Subject is he, verb is drives and object is car. Rule 2. Interchange the object and subject with each other. That is, object of an active sentence become the subject of the passive sentence. Example, active voice. She knits sweater. Subject she, verb knits, object is sweater. Now while changing into passive voice, the object will come first. The sweater is knitted by her. Object sweater is interchanged with the subject she. Rule 3. In the passive voice, sometimes the object is not used. The subject in passive voice can be omitted if the sentence without it gives enough meaning. Like milk is sold in liters. कई बार object नहीं दिया गया है तो इसे हम interchange नहीं करेंगे. We have to use at is. Rule 4. Change the base verb in the active sentence into the past participle, that is third form of the verb in passive sentence that is preceded by, with, to, etc. Base verbs are never used in passive voice sentence. Now कई बार जो हम change कर रहे हैं active to passive voice, हमें कई बार by, with, to लगाकर उसे change करना होता है. Example, active voice, she prepares dinner. Passive voice, the dinner is prepared by her. By हमें लिखना रहेगा. Rule 5. While conversion the active voice sentence to passive voice sentence, the pronoun used in the sentence also changes the following manner. Like pronouns भी हमारे change होते हैं while we are changing from active to passive. Like I will change into me, we will change into us, he, him, you, she, her, they, them, who, whom, it. जब भी हम चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव तो ये सब प्रोनाउंस हमारे दूसरे उसमें चेंज होंगे. लाइक टेबल में बताया गया है. यूज द सुटेबल helping or auxiliary verb, is, are, was, were, etc. The rules for using auxiliary verbs in passive voice sentence are different from each sentence. The letter is written by her. The book was not bought by her. Chocolates are being eaten by them. यहाँ पर हमारे auxiliary verbs जो कि I, am, are, was, were, etc. जो भी auxiliary verbs होते हैं वो हमें use करने रहते हैं in the passive voice. Rule 7. Sentence in the present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous and future continuous can't be transformed into passive voice. अब ये जो चार टाइप के सेंटेंस हैं, टेंसेस हैं, जैसे कि present perfect continuous,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस ये हमारे पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। वेरियस टेंसेस एंड द चेंज ऑफ द वॉइस, यहाँ पर हम टेंसेस के थ्रू वॉइसेस भी चेंज करना बता रही हूँ। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, एक्टिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। अब इसे हम करना है पैसिव वॉइस में। वॉइस का रूल है ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट पहले आया है और सब्जेक्ट बाद में आया है, फिर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स लगे हैं। सो द चेंज विल बी अ लेटर इज रिटर्न बाय हिम। Negative active structure, subject plus do or does not plus verb first form plus object. Example, he does not cook food. नेगेटिव में हम ये जानते हैं कि नॉट लगता है, और जब भी हमारा नॉट लगा है तो हमें ये देखना रहता है कि कहाँ पर डू या डज लगेगा। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि हमारा डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। एज पर द रूल सिंगुलर के साथ डज लगता है एंड डू प्लूरल के साथ, बट एक्सेप्शन इज देयर, आई और यू के साथ हम डू ही लगाते हैं। Now the sentence, the change will be, he does not cook food. Here it is changed into passive voice. Food is not cooked by him. Always remember, हमें हर समय ध्यान रखना पड़ेगा कि verb का थर्ड फॉर्म ही हमारा passive voice में लगेगा। Then there is a interrogative active structure. Does, subject plus verb first form plus object. एग्जाम्पल, डज ही परचेज बुक। ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, डज ही परचेज बुक। इसको हमने वॉइस में चेंज किया है, आर बुक्स परचेज्ड बाय हिम। अकॉर्डिंग टू द रूल, इजएमआर पहले हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, दैट इज अ बुक, देन वर्ब थर्ड फॉर्म परचेज्ड, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट दैट इज ही का हम हिम लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, present continuous tense, active structure, subject plus ismr plus verb first form plus ing plus object. Example, Isha is singing a song. जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आता है, दैट इज ismr, और वी कैन से ऑक्सिलरी वर्ब्स, और उसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing लगाते हैं। सो द सेंटेंस इज, ईशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसे हम चेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, दैट इज अ सॉन्ग इज बीइंग सung बाय ईशा। इसका रूल है ऑब्जेक्ट प्लस ismr प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, दैट इज अ सॉन्ग इज योर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, इज आपका ऑक्सिलरी वर्ब लग गया। अब कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम बीइंग लगाएंगे, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस में बीइंग लगेगा ही लगेगा। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, सिंग का संग, बाय, देन ईशा, दिस इज योर सब्जेक्ट। ईशा आपका सब्जेक्ट है जो कि पीछे आया है। नाउ नेगेटिव एक्टिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस ismr प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है उसमें रूल सेम है, बस नॉट लगाना है, लाइक कृतिका इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स। अब इसे हम चेंज कर रहे हैं वॉइस में, पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट आपका पहले आया, ऑब्जेक्ट प्लस ismr प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का रूल है ये, इसे हमने चेंज किया है, वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग चॉप्ड बाय कृतिका। एज इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट आया, कंटिन्यूस है इसलिए बीइंग आया, और वर्ब थर्ड फॉर्म हमें लगाना ही है। नेक्स्ट थिंग, इंट्रोगेटिव एक्टिव स्ट्रक्चर, ismr प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, इज रितिका बाइंग अ टेबल। पैसिव वॉइस, ismr विल कम फर्स्ट, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है या ऑक्सिलरी वर्ब वो हमारा पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा, देन बाय, देन सब्जेक्ट। इज अ टेबल बीइंग बॉट बाय रितिका।
यू कैन सी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आया है और सिंस इट इज अ कंटिन्यूअस इसलिए बीइंग आया है. नाउ नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट. द रूल फॉर द एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल Nitish has challenged her. Now as I have told you कि has और have के साथ हर समय third form of the verb लगता ही लगता है. Now while changing into passive voice, the rule will be object plus has or have plus been plus verb third form plus by plus subject. अब यहाँ पर हम रूल देख रहे हैं उसमें been जरूर लग रहा है. In perfect you have to keep in your mind कि हमें been लगाना बहुत जरूरी है. For example, Nitish has challenged her. हमने passive voice में change किया है. She has been challenged by Nitish. हर दिया है इसलिए हम she से start कर रहे हैं. Negative active structure subject plus has or have plus not plus verb third form plus object. Radhika has not returned an article. यहाँ पर has है negative sentence है इसलिए not लगा है. Rule for the passive object plus has or have plus not plus been plus verb third form plus by plus subject. An article has not been returned by Radhika. I suppose this thing you must have understood. Next thing, interrogative active structure has or have plus subject plus verb third form plus object. Example, have they left the apartment? Now you can see ये tense का रूल है, interrogative present perfect का रूल है. have हमने पहले लगाया है क्योंकि ये interrogative है and they है plural है इसलिए हम have लगा रहे हैं. Then third form of the verb is left द अपार्टमेंट. ये टेंस का रूल हुआ है. अब पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस का रूल है हैज और हैव ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. अब इसे हम चेंज कर रहे हैं. देन हियर अपार्टमेंट इज अ सिंगुलर, एक वचन है इसलिए हैव की जगह हमने हैज यूज किया है. हैज अपार्टमेंट जो ऑब्जेक्ट है वो हमने पहले लिया है. बीन लेफ्ट बाय देम, दे का देम हुआ है जो कि सब्जेक्ट है वो लास्ट में गया है. नेक्स्ट वन, पास्ट टेंस. Past indefinite tense. The rule for active structure subject plus verb second form plus object. पूरे 12 टाइप में से सिर्फ ये simple past और we can say past indefinite यहाँ पे verb का second form of the verb लगता है. Example, रीमा cleaned the floor. इसे हम change कर रहे हैं passive voice में. The floor was cleaned by रीमा. Now the rule for the passive voice क्या है? Object. Object आपका the floor है. Was और were आ गया, that is auxiliary verb. The floor singular है इसलिए was लगा है. Verb third form cleaned by subject. Subject यहाँ पर रीमा है so हमने रीमा लिखा है. Now negative active structure subject plus did not plus verb first form plus object. You have to change the voice. Object plus was or were plus not plus verb third form plus by plus subject. Example, Isha did not buy a bicycle. Bicycle आपका ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस के रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट पहले आया है, बाइसिकल लिखा. फिर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर पास्ट टेंस है इसलिए हम वॉज लिख रहे हैं. बाइसिकल सिंगुलर है, हमें ये भी देखना होगा कि ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल. यदि ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर आएगा. यहाँ पर अ बाइसिकल है मीन्स सिंगुलर है, एक वचन है इसलिए हम वॉज लिख रहे हैं. अ बाइसिकल वॉज नॉट bought by Isha. That is by का हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज bought और Isha इज योर सब्जेक्ट इसलिए हम इसको लास्ट में ले रहे हैं एज पर द रूल वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस by प्लस सब्जेक्ट. नेक्स्ट वन, इंट्रोगेटिव एक्टिव स्ट्रक्चर did प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस object. Example of the tense is did Maria pay the bill? Now for this the passive voice will be were the bills paid by Maria. Now passive voice rule was or were plus object. अब were हमने यहाँ पर इसलिए यूज किया है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, दैट इज द बिल्स. बिल्स आपका बहुवचन है इसलिए हम वर से स्टार्ट कर रहे हैं. वर द बिल्स पेड बाय मारिया. नेक्स्ट वन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, निकिता वॉज पेंटिंग द
wall. Passive voice, the wall was being painted by Nikita. According to the rule of the passive voice, हमें being लगाना पड़ेगा as I have told in the present continuous. अब past continuous का rule ये है object plus was or were plus being plus verb third form plus by plus subject. जैसे कि एग्जाम्पल दिया था, Nikita was painting the wall. The wall is your object. was, wall singular है इसलिए was लगा. continuous tense है इसलिए been लगा रहे हैं. verb third form painted by Nikita. Next, negative active structure, subject plus was or were plus not plus verb first form plus ing plus object. Manish was not repairing the car. Here the voice changes. The car was not being repaired by Manish. ये नेगेटिव आ गया और इसका रूल हो गया ऑब्जेक्ट प्लस was or were plus not plus being plus verb third form plus by plus subject. Interrogative active structure, was or were plus subject plus verb first form plus ing plus object. Now here when you will change into passive voice का रूल ये होगा was or were plus object plus being plus verb third form plus by plus subject. Example, were you reciting the poem? ये हमारा past interrogative tense है, इसको हमने passive voice में change किया है. According to the rule, was the poem, was आया, ऑब्जेक्ट आपका द पोएम है, फिर बीइंग है, अकॉर्डिंग टू द रूल बीइंग लगाना पड़ेगा. वर्ब थर्ड फॉर्म रेसिटेड बाय यू, देन यू हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क. सब्जेक्ट आपका पीछे आ गया, दैट इज यू. नेक्स्ट वन, पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था, सेम रूल है, दैट इज जस्ट द डिफरेंस इज हैज और हैव हटकर हैड लगता है, बाकी रूल वो ही चलता है. विशाल हैड सॉल्व द डाउट्स, ये आपका टेंस है, इसका हम वॉइस चेंज कर रहे हैं, पैसिव वॉइस. द डाउट हैड बीन सॉल्व, इसका रूल हम देखेंगे अब. ऑब्जेक्ट दैट इज द डाउट, हैड क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट है इसलिए हैड लग रहा है. देन बीइंग यू हैव टू राइट इट. परफेक्ट में जैसे कि बताया गया है हर समय बीइंग लिखना जरूरी है और कंटिन्यूअस में बीइंग लिखना, BEING और इसमें BEEN. देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस subject. So for this changes is Vishal had solved the doubt. इसका change हमने किया है, the doubt had been solved. Next one, negative active structure, subject plus had plus not plus verb third form plus object. Example, Vidhi had not received the parcel. The parcel had not been received by Vidhi. Now rule for this voice is object plus had plus not plus been plus verb third form plus by plus subject. Next thing, interrogative active structure of past perfect, had plus subject plus verb third form plus object. Example, had they caught the thief. पैसिव वॉइस का रूल होगा, हमें यहाँ नहीं देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, जस्ट हमें had पुट ही करना है. had प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है. नाउ इसका पैसिव वॉइस दैट इज हैड दे कॉट द थीफ, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसे हमने चेंज किया है पैसिव वॉइस में. हैड द थीफ बीन कॉट बाय देम, डे का हमने देम चेंज किया है और बाकी जो रूल के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं. नेक्स्ट वन, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनाइट एक्टिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस object. Like Kriya will sew the bag. Passive voice, the bag will be sewed by Kriya. Now here ये आपका active voice दिया गया है, Kriya will sew the bag. इसको हमने passive में change किया है, that is the bag will be sewed by Kriya. इसका रूल है object plus will plus be plus verb third form plus by plus subject. हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें बी लगाना ज़रूरी है और ये एज यूजुअल एज आई हैव टोल्ड, जब भी हम चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव वर्ब थर्ड फॉर्म लगाना कंपल्शन है. नेक्स्ट वन, नेगेटिव एक्टिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसका चेंज होगा, ये आपका एक्टिव वॉइस का है, दैट इज टेंस का है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस में चेंज होगा. पैसिव वॉइस रूल इज ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस be plus verb third form plus by plus subject. Now example we are seeing Disha will not arrange the thing. ये हमारा
एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं. दिशा विल नॉट अरेंज द थिंग्स. The sentence is the things will not be arranged by Disha. This will be your passive voice. Interrogative, active structure, will plus subject plus verb first form plus object. Here example, will you mop the floor? क्या आप पोछा लगाएंगे? देन ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हुआ. विल ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. दैट इज द एग्जाम्पल विल यू मूव द फ्लोर. इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया है. विल द फ्लोर बी मोप्ड बाय यू. विल देखिए दैट इज इन द क्वेश्चन, जो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा फर्स्ट में लिखना है इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फिर ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट द फ्लोर है. Then be as it is future tense, तो be लग रहा है. Verb third form is mopped by और subject हमारा you है. Next one, future perfect continuous. Subject plus will plus have plus verb third form plus object. Changing the voice, the rule will be object plus will plus have plus been plus verb third form plus by plus subject. Example, they will have brought the toy. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं will have है, means ये will तो denote कर रहा है future है, have denote कर रहा है कि ये perfect है. Now while changing it, अब यहाँ पर क्वेश्चन में the toy आपका object है. ऑब्जेक्ट पहले आया, फिर will लिखा, जैसे कि रूल में लिखा है ऑब्जेक्ट प्लस will. फिर हमारा हैव है, हमने हैव लिखा, फिर बीन लिखा. एज पर द रूल कि परफेक्ट में हर समय बीन आएगा वाइल चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस. बीन आया, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म ब्रॉट का ब्रॉट ही रहेगा. बाय और सब्जेक्ट आपका दे है तो वो देम चेंज हो जाएगा. सेकेंड वन, नेगेटिव एक्टिव स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नीलेश विल नॉट हैव चेंज द टेबल कवर. नाउ सब्जेक्ट यहाँ क्या है? नीलेश है. विल नॉट हैव चेंज्ड द टेबल कवर. विल नॉट हैव आपका ये हेल्पिंग वर्ब हो गया. देन चेंज इज योर वर्ब थर्ड फॉर्म. द टेबल कवर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया. अब एज पर द रूल ऑब्जेक्ट आपका पहले आएगा इन द पैसिव वॉइस. ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट आपका पहले आया, दैट इज द टेबल कवर इज योर ऑब्जेक्ट. एज पर द रूल जैसे हम देख रहे हैं, विल फिर नॉट हैव बीन देन चेंज्ड वर्ब थर्ड फॉर्म बाय नीलेश. नीलेश आपका सब्जेक्ट है, इसलिए लास्ट में आया. नाउ इंट्रोगेटिव एक्टिव स्ट्रक्चर. विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. देन हियर एग्जाम्पल, विल शी हैव रिटर्न द नोट्स. इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया है. विल फिर ऑब्जेक्ट आपका द नोट्स है. विल द नोट्स हैव बीन एज पर द रूल में जो दिया गया है. वर्ब थर्ड फॉर्म इज रिटर्न बाय हर. शी का हमने हर लिखा. नाउ दिस इज द चेंजेस फॉर दिस, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस.